السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں پراز احمد اور میں ہوں آمنہ کھٹانا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں بلیٹن کا اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کا 4 سال بعد باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز۔ مرکزی سیکریٹریٹ میں اجلاس کی قیادت کی۔ وفود سے ملاقات میں کہا کہ مقصد پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ مزید کہا کہ معاشی بحالی کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ نون لیگ کا پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ۔ بول نیوز اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا 4 سال بعد باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز۔ مریم نواز کے ہمراہ جاتی عمرہ سے نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، احسن اقبال سمیت نون لیگی قیادت بھی موجود تھی۔ نواز شریف نے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کا پیغام دیتے ہوئے کہا، ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوا تھا۔ اکانومی ایسی چیز ہے جو جس کے دائرے میں سب کچھ آتا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو بھرپور توجہ ہماری سب کی جو ہے وہ اکانومی پہ ہی ہوگی۔ تو اکانومی میں اگر ہم اپنا عام آدمی کو کوئی خدمت کر سکے تو اس سے زیادہ خوشی ہمیں اور کیا ہو سکتی ہے۔ سیالکوٹ کے سابق ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر سے ملاقات میں کہا، معاشی بحالی کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے بھی پچھلے لاہور میں جو بھی جلسہ ہمارا ہوا ہے اس میں نے اپنا کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر 1990 کا مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں شاید ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ایشیا۔ قائد نون لیگ نے پارٹی رہنماؤں کو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک سونپ دیا۔ بول نیوز کو موصول اندرونی کہانی کے مطابق لیگ کی قیادت نے پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ قائد نون لیگ نے پارٹی رہنماؤں کو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ آئندہ کا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا۔ مخالفین مل کر بھی پیپلز پارٹی کو ہرا نہیں سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے۔ پیپلز پارٹی میدان میں ہے اور جیت بھی رہی ہے۔ ہم ضمنی انتخابات سے نہیں بھاگے۔ پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ کراچی کے لیے نوجوان میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب کیا۔ ہر پاکستان کی شہری ایک امیدوار تو بن سکتا ہے، مگر آخر جو فیصلہ ہے وہ عوام کریں گے، اور میں پر امید ہوں کہ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہوگا۔ میرا خیال میں آپ کے پاس یہ پرانا خبر ہے۔ صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا میاں صاحب کے ساتھ، وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے، آج شاید خبر آیا ہوگا، خبر پرانا ہے اور بات چیت تو ہوتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے پہ، اپنا منشور پہ، اپنا نظریہ کے مطابق لڑیں گے۔ ہم میدان میں ہیں اور جیت بھی رہے ہیں، آج سے نہیں، ان بائی الیکشن سے نہیں، مگر آتی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے۔ بائی الیکشنز میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے۔ آپ ان سے پوچھیں جو بائی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو بلدیاتی الیکشنز میں میدان سے بھاگ رہے تھے، جو نومبر کے جنرل الیکشن سے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے۔ کراچی کے کیا پورا پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری تیز ہو گئی۔ پی پی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے۔ سندھ میں نئے اتحاد بنائے جا رہے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، جس کے جواب میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا، پی پی والے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، الیکشن فیلڈ میں آئیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ کلین سویپ کریں گے۔ ملک میں الیکشن کی تیاریاں جاری، سیاسی گرما گرمی بھی بڑھنے لگی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری تیز ہو گئی۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں، ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے۔ سندھ میں نئے اتحاد بنائے جا رہے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ سب کو پتا ہے کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے، کون ڈر رہا ہے الیکشن سے، کون سی جماعت ایسی ہے جو وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ تاریخی فتح، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے سینٹرل پنجاب ہو، چاہے ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے سندھ بھر ہو
اور سندھ کے شہری ایک مضبوطی کے ساتھ ملے گی. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے پیپلز پارٹی کو الیکشن کے میدان میں مقابلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا پی پی والے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں, الیکشن فیلڈ میں آئیں. اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. مریم اورنگزیب نے کہا نون لیگ کی انتخابی مہم کا آغاز 21 اکتوبر کو ہو چکا ہے, تمام جماعتیں میدان میں اتریں اور الیکشن کی تیاریاں کریں. رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. کہا کہ ماضی میں استعفے دیے نہ ہی دھرنے دیے, اب 2023 میں بھی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. جیل میں موجود سیاستدان کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ شریف خاندان نے سب سے زیادہ جھوٹے مقدمے اور سزائیں کاٹی ہیں, سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ہم انتخابات کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں, لیکن ہم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ سارے آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے. 18 میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, ہم نے الیکشن نہیں لڑا, حالانکہ ہم اس کے نتائج کو نہیں مانتے تھے. نہ ہم نے استعفے دیے اس میں سے, نہ ہم نے دھرنے دیے. ہاں ہم نے اپنی بات ضرور کی, اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ سب الیکشن لڑیں گے, ابھی فیصلے سارے ہوں گے, کچھ طریقے سے لگنا ہے. ہاں صاحب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب کے پاس لیول کھڈا چٹا کسی ہی نہیں ہے. ترجمان جے یو آئی اسلم غوری نے پی پی ترجمان فیصل کریم کنڈی کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ جے یو آئی کسی کے بل بوتے پر سیاست نہیں کرتی اور کسی کے فون یا سہارے کی محتاج نہیں. اسلم غوری نے کہا کہ پی پی سندھ میں عوامی حمایت سے محروم ہو رہی ہے اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر غصہ اتحادی جماعتوں پر نکال رہی ہے. ترجمان جے یو آئی نے مزید کہا کہ پی پی انتخابات کی تیاری اور سندھ میں اپنی سیاست بچانے کی کوشش کرے. پی پی غیر سنجیدہ بیانات دینے کی بجائے حقائق کا سامنا کرے. خبر یہ ہے کہ ارض پاک کے دفاع کا مقدس فرض انجام دیتے ہوئے پاک فوج کے 4 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کر لیا. خیبر پختونخوا کے ضلع وادی تیرہ میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 فوجی جوان شہید ہو گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گردوں کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا. لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ پشاور چھاؤنی میں ادا کی گئی. شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا. اتنے عزیز کو دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلانے کے مقدس مشن میں پاک فوج کی عظیم قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع وادی تیرہ میں دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے 4 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کر لیا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہوئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 6 نومبر کی رات سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر وادی تیرہ میں آپریشن کیا. دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا جس میں آپریشن کی قیادت کرنے والے 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر نے جام شہادت نوش کیا. فائرنگ کے تبادلے میں نائک خوش دل خان، رفیق خان، لانس نائک عبد القادر بھی شہید ہو گئے. وادی تیرہ میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ پشاور چھاؤنی میں ادا کی گئی جس میں کور کمانڈر پشاور، اعلیٰ فوجی افسران، جوانوں، سول حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں اور بہادر جوانوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید مستحکم بناتی ہیں. غزہ کو مدد کی ضرورت، لیکن پاکستان طالبان کا نشانہ کیوں؟ کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا. ضرورت پڑنے پر دونوں جتھے ایک ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے. ان دونوں کا جہاد فقط معصوم شہریوں کا خون بہانے تک ہی محدود ہے. کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے 2 رخ. ضرورت پڑنے پر دونوں ایک. پاکستان میں موجود غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے رد عمل میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی ان حقائق کا واضح ثبوت. منفی سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور پشتون تحفظ موومنٹ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی جیسی لسانیت پرست جماعتوں کے قائدین کے پاکستان مخالف منفی بیانات بھی سامنے ہیں. آئی تھنک اس میں افغان گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، افغان انٹرم گورنمنٹ کو، کیونکہ ہمارے پاس کافی لیوریج ہیں، پاکستان نے یوز نہیں کیے. 6-7 لیوریج ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، افغان مہاجرین ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ فوڈ، گرین، سیمنٹ، کیا کچھ نہیں جاتا یہاں سے. اور وہاں سے اگر ٹیررزم ہی ہوتا ہے تو دے ہیو ٹو ریئلائز، اور ہم اچھے نیبرز بن کے رہنا چاہتے ہیں، بٹ
not be at the cost of Pakistan. तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी खवारिज की दहशतगर्द तंजीम और इनको पालने वाली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का नाम नेहाद जिहाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और बेगुनाहों के खून बहाने तक ही महदूद है। जिहाद के अलमबरदार अफगान तालिबान और TTP सिर्फ पाकिस्तान को निशाने पर रखे हुए हैं, जबकि गजा जाने के लिए उनके पर जलते हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की क़यादत के पाकिस्तान में बराह रास्त मुतादिद कारोबार और दीगर मफादात हैं, जिनमें बेनामी जायदादें, मदारिस के तलबा की भर्ती, स्मगलिंग, मनशियात और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का इस्तेहसाल शामिल है। भारत पर गैर कानूनी अफगानों की मुल्क बदरी, स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन और अफगान ट्रांजिट ट्रेड को हमवार करने के लिए पाकिस्तान की कार्रवाई ने बराह रास्त TTP और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इक्तिसादी मफादात पर असर डाला है। हुकूमत पाकिस्तान को यह हक हासिल है कि अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई कसर ना उठा रखी जाए, फिर चाहे गैर कानूनी अफगान शहरी हो या TTP या अफगान तालिबान, कोई भी रियायत का मुस्तहिक नहीं। एयरबेस हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ। मियांवाली एयरबेस हमले में दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल जारी। मियांवाली एयरबेस पर नाकाम हमले में मरने वाले दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्ता निकला। वासिल जहन्नुम किए जाने वाले दहशतगर्दों के पास से मिलने वाले असलहे में RPG-7, AK-74, M4, M16 और A4 शामिल हैं। अमरीकी साख्त के हथियार अफगानिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जो दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की सरजमीन का इस्तेमाल और अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद दहशतगर्द आजादाना गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इससे कबल भी ज़ोब कंटोनमेंट हमले में भी अमेरिकी हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल हुआ था। माहिरीन ने कहा है अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकना होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना है कि ये एक अजीम बयानिया है जो फतवे की सूरत में सामने आया है। इस बयानिया और पैगाम पाकिस्तान को हर घर की आवाज़ बनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन नजरियाती कौंसिल क़िबला अयाज ने कहा कि शरई राय की पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत है। बलोचिस्तान से अब तक 59,000 गैर मुल्की तारकीन की वतन वापसी हो चुकी है। हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक 54,858 अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जा चुके हैं, जबकि 4,348 गैर कानूनी मुकीम अफगान तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया है। UNHCR के तवस्सुत से 410 अफगान मुहाजिरीन की वापसी हुई है। रिटायर्ड जजेस को मुफ्त यूनिट्स तो मिल सकते हैं, इसके एवज पैसे नहीं मिल सकते। वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। मरासले में लिखा कि मुफ्त यूनिट के मुतबादिल के तौर पर रकम की अदायगी की रूल्स में कोई गुंजाइश नहीं। रिटायर्ड जजेस को बिजली के मुफ्त यूनिट्स तो मिल सकते हैं, उसके एवज पैसे नहीं, वजारत खजाना ने वाज़ेह कर दिया। हुक्काम ने मरासला सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया। लिखा रिटायर्ड जजेस और उनकी अहलिया रूल्स के मुताबिक 2000 मुफ्त यूनिट्स के अहल हैं। मुतबादिल के तौर पर रकम की अदायगी की रूल्स में गुंजाइश नहीं। साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने सोलर पैनल लगवाने के 22 मुफ्त बिजली की जगह अदायगी के लिए खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जायजे के लिए वजारत खजाना को भिजवाया था। शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। ऑडियो लीक्स केस में वजीर आजम ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वजीर आजम ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता है। वजीर आजम ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशन की तफसील में जाना मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने वाली एजेंसियों के मफाद में नहीं। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जरूरी है। इस बात को भी यकीनी बनाना जरूरी है कि रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। टेलीग्राफ एक्ट 1885 में भी पैगामात पढ़ने के लिए वफाकी या सूबाई हुकूमत से इजाजत को लाजिम करार दिया गया है। पीका ऑर्डिनेंस और रूल्स के तहत भी हासिल किए गए डेटा या रिकॉर्ड को खुफिया रखना लाजिम है। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक करने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। वफाकी हुकूमत ने सीनियर जजेस
پر मुश्तमिल आला सतह का इंक्वायरी कमीशन कायम किया है। इंक्वायरी कमीशन लीक की गई ऑडियोज के मुसद्दिका होने की इंक्वायरी करेगा। वसूली का प्लान। रवा माली साल के टैक्स इक़दामात पर FBR ने IMF को प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक 10 लाख मजीद टैक्स गुजार तलाश करने का प्लान पेश किया गया है, जबकि नए टैक्स दहिंदा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। टैक्स वसूली का प्लान। रवा माली साल के टैक्स इक़दामात पर FBR ने IMF को प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक 10 लाख मजीद टैक्स गुजार तलाश करने का प्लान पेश किया गया। नए टैक्स दहिंदा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मुकदमात के बाइस फंसी 3000 अरब रुपए की वसूली का प्लान वजारत कानून से मशवरे के बाद पेश किया जाएगा। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। FBR ने रवा माली साल जुलाई तक अक्टूबर में हदफ से ज्यादा वसूलियाँ की। नए माली साल के पहले 4 माह के दौरान FBR ने 2682 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2748 अरब रुपए जमा किए। FBR ने 8 माह में 6667 अरब रुपए की वसूली करना है। FBR ने रवा माली साल के 4 माह के दौरान 158 अरब रुपए के रीफंड्स भी जारी किए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की इसराइली जारहियत से बच्चों UNRWA अमले सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत। कहा कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। 4 हफ्ते में 3 दहाइयों के मुकाबले ज़्यादा सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं। इसराइली हमले में माई नाम की माजूर लड़की तक मारी गई। माई व्हील चेयर पर थी, सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और UNRWA में काम कर रही थी। गजा में सूरत हाल डरावने ख्वाब जैसी है। तेल के बगैर इंक्यूबेटर्स पर नौज़ायदा बच्चे और लाइफ सपोर्ट पर मरीज मर जाएंगे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत को 1 माह गुजर गया। तारीख के स्याह बाब में कई सफ़ात का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं साथी एंकर आमना खटाना से। इजरायली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 88 एहलकार मारे जा चुके, जो किसी भी तनाज़े में UN का सबसे बड़ा जानी नुकसान है। गजा और लेबनान में इजरायली हमलों में 36 सहाफ़ी जान गंवा चुके हैं, 8 सहाफ़ी जख्मी हैं, 3 लापता और 8 गिरफ्तार हैं। इजरायली फ़ौज ने ढिठाई से ऐलान किया कि वो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं दे सकती। मगरिब में यूक्रेन जंग का वावेला किया जाता है। यूक्रेन में 1 साल के दौरान 10,000 के लगभग शहरी मारे जा चुके हैं, लेकिन गजा में 1 माह में इतने ही मासूम शहरियों को अब्दी नींद सुला दिया गया, जिनमें निस्फ तादाद बच्चों की। 3 बड़ी सियासी जमातों का मंशूर महज खोखले नारों से भरपूर लेकिन अवामी उमंगों से खाली है। किसी भी जमात के पास अवामी मसाइल के हल का कोई ठोस हल मौजूद नहीं। पाइड की तहकीकी रिपोर्ट में इंकशाफ कहा गया कि नून लीग का मंशूर सिर्फ 12% मुल्की मसाइल का अक्कास है। पीपल्स पार्टी का मंशूर 7 और PTI का मंशूर सिर्फ 1.5% असल मसाइल की तर्जुमानी करता दिखाई देता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वतन अजीज पाकिस्तान में 7वें आम इंतखाबात का बिगल बज चुका। सियासी जमातें अपने अपने पहलवानों के साथ सियासी दंगल में कूदने को तैयार हैं। दुनिया भर में इंतखाबी मुहिम का आगाज पार्टी मंशूर की रुनुमाई से होता है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में बस टी पार्टी या रोटी पानी का इवेंट होता है। कमोबेश तमाम जमातों के पास अवामी मसाइल के हल के बजाय शख्सियत परस्ती पर जोर है, जिसका नतीजा ये है कि सियासी जमातों के मंशूर महज खोखले नारों से भरपूर लेकिन अवामी उमंगों से खाली है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर अवामी मसाइल का वाज़ेह हल देने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। तकाबली जायजे से जाहिर होता है कि मंशूर में वाज़ेह रूट मैप और पॉलिसी की बजाय होमवर्क किए बगैर खोखले दावों से ही काम चलाया गया है। रिपोर्ट में 18 अहम तरीन मसाइल और कलीदी शोबों की बुनियाद पर तीनों बड़ी सियासी जमातों के मंशूर को परखा गया। रिपोर्ट मुरतब करने के लिए हर शोबे या मसले के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 स्कोर रखा गया। मायूस कुन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 में से 17 शोबों में 0 कारकर्दगी का मुजाहरा किया। PTI 18 में से 13 जबकि मुस्लिम लीग नून 12 शोबों में कारकर्दगी से आ रही थी। मजमूई तौर पर तीनों बड़ी सियासी जमातों ने 20% से भी कम स्कोर किया। 20% कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाए तो नून लीग का मंशूर सिर्फ 12% मुल्की मसाइल का अक्कास है। पीपल्स पार्टी का मंशूर 7 और PTI का मंशूर सिर्फ 1.5% असल मसाइल की तर्जुमानी करता दिखाई देता है। सवाल पैदा होता है कि क्या सियासी जमातें मसाइल का इदराक रखती हैं? क्योंकि किसी भी सियासी जमात ने आज तक ऐसा रूट मैप नहीं दिया कि वो इख्तिदार में आने के बाद मसाइल को हल कैसे करेगी। किसी सियासी जमात के मंशूर में तरक्की के लिए तवीलुल मुद्दत हिकमत अमली दिखाई नहीं देती। पाइड की एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2021 तक पार्टी लीडर्स के ट्विटर अकाउंट्स के तजिए से साफ दिखाई देता है कि इंतखाबी मंशूर में जिस विजन की बात की गई थी वो इंतखाबात के बाद
साथ कहीं दिखाई नहीं दिया। ट्विटर या एक्स अकाउंट्स पर PPP और नून लीग की क़यादत सियासी तनाज़ात या खानदानी अजमत के गुण गाती रही, जबकि PTI अकाउंट्स का तज्जिया बताता है कि वहाँ मसला कश्मीर मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल पर छाया रहा। कोई लफ्जी जंग नहीं, पीपल्स पार्टी को पता है कि अगला इलेक्शन नून लीग जीतेगी। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। बोले नवाज शरीफ की वापसी के बाद नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। PP को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है? इनका किसी ने रास्ता रोका है, ना ही रोकना चाहता है। मखरूत हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं होता। कोई लफ्जी जंग जारी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात रही है। हम उनके लिए अभी भी अच्छे जज्बात रखते हैं। वो ये जान चुके हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जीतना है। मुस्लिम लीग नून है, उसकी जो मकबूलियत है और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद जो पार्टी का ग्राफ है और जिस तरह पजीराई मियां नवाज शरीफ साहब को मिली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड वो चाहते हैं जो उनको नहीं मिली हुई। सारे मामलात उनके जहाँ जहाँ वो चाह रहे हैं प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, लीडरशिप उनकी अपना काम कर रही है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका रास्ता किसी ने रोका है या कोई रोकना चाह रहा है। मखलूक हुकूमत जो होती है वो कोई अच्छा मॉडल नहीं है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में। इस पार्टी के रहनुमा कादर मंदुखेल कहते हैं कि नवाज शरीफ नाअहल और सज़ा याफ्ता हैं। वो किस बुनियाद पर दावा कर रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे? बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ नाअहल हैं, उनका केस तो सुप्रीम कोर्ट में है। लगता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर ही इलेक्शन लड़ना चाहती है। उन्होंने तंज किया कि ऑर्डिनेंस जारी करके नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। देखिए, नवाज शरीफ साहब का केस तो पहले आप याद देख ले कि इस वक्त नाअहल है, सजा याफ्ता है। वो किस बात की जो है ना वो बंगड़े डाल रहे हैं। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का एक शख्स जो दूसरी मर्तबा अदालतों से सजा याफ्ता के बाहर जाता है और जिस तरह शान शौकत से बाहर जाता है उसी तरह शान शौकत से बाहर आता है, तो क्या ये सारी फैसिलिटीज एक आम आदमी को मिल सकती है? बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो शायद हमारे बगैर ही इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और एक ही पार्टी का। नवाज शरीफ साहब तो आज तक पाकिस्तान की अदालतों में नाअहल है और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब आपने तय कर लिए कि नवाज शरीफ साहब के तय में लिख के देता हूँ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का, तो एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे और अल्लाह खैर सदा फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है। जराइम की सूरत हाल आपको बताते हैं तो कराची में साबिक DIG जेल खाना जात भी महफूज नहीं है। गुलशन मेमार में घर से 20 लाख के परिंदे चोरी हो गए। कराची न्यू कराची सनती एरिया में घर की दहलीज पर शहरी को लूट लिया गया। कराची में शाह लतीफ पेट्रोल पंप पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में डिजिटल डकैतियां करने वाला गिरोह सरगर्म। डिजिटल डकैती की वारदात कोरंगी गोदाम चौरंगी पर मोबाइल शॉप पर की गई। कराची में डाकू राज। न्यू कराची सनती एरिया में घर की दहलीज पर शहरी को लूट लिया गया। ताकुब करते डाकुओं ने शहरी को असले के जोर पर जरगामाल बनाया, शहरी को लूटा और 9-2-11 हो गए। साबिक DIG जेल खानाजात भी शहर कायद में गैर महफूज। गुलशन मेमार में साबिक DIG जेल खानाजात के घर की छत से मुलजिमान 20 लाख रुपए से जायद मालियत के परिंदे चोरी करके ले गए। उधर शाह लतीफ में पेट्रोल पंप पर फायरिंग से कैशियर के जख्मी होने के वाक़े को पुलिस ने टारगेट किलिंग का शाखसाना करार दे दिया। फायरिंग के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। शाह लतीफ में ही डाकुओं के जत्थे ने दूध की दुकान लूट ली। वारदात के दौरान डाकुओं ने फायरिंग की, दुकान से 4 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मुतासरा दुकानदार का कहना है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने में ताउन नहीं कर रही। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जो कि आवारा कुत्तों का राज हो रहा है। वहाँ पर थाना फैक्ट्री एरिया और थाना नश्तर की हदूद में आवारा कुत्तों ने 7 बच्चों को काट लिया। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर में? आवारा कुत्तों की बहुतात है? जी बिल्कुल, लाहौर में आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है। शहर की गलियों चौराहों पर जो है वो आवारा कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं। 2 इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात आज लाहौर के 2 इलाकों में पेश आए हैं, थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में और थाना नश्तर कॉलोनी की हदूद में, कि आवारा कुत्तों के काटने से 7 बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। जबकि इंतजामिया जो है वो हमें मौके से गायब दिखाई देती है। ना तो कोई कुत्ता मार या कुत्तों को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और ना ही जो है इसका कोई सदेबाब किया जा रहा है। शहरी बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला है क्योंकि जहां पे बड़ों को इससे खतरा है, वहीं पे बच्चे जो हैं वो आवारा कुत्तों का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो है वो टीमें बनाई गई थी जिनको आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, उसके ऊपर जो है वो काम भी किया गया, मगर अब एक मरतबा फिर से शहर में जो है वो आवारा कुत्ते सुबह शाम जो है वो दाएं बाएं जो है वो नजर आते हैं। लेकिन इंतजामिया जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। ना तो कोई टीमें बनाई गई हैं और ना ही। शुक्रिया आपका।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।